ناظرین، کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار اس کی اکانومی پہ ہوتا ہے. اکانومی اگر صحیح ہے تو پھر باقی چیزیں جو آہستہ آہستہ وہ صحیح ہوتی جاتی ہیں. اور یہ ایک ہمارے لیے بہت ہی اہم بات تھی. گزشتہ 2-3 مہینے میں ڈالر جو تھا وہ تقریباً 325 20 30 بھی کراس کر گیا تھا. لیکن اللہ کی مہربانی سے پھر کچھ لوگوں نے ایسی انہوں میں محنت کی، جس میں ایک نام ملک بوستان صاحب کا بھی شامل ہے، جو چیئرمین انسٹیٹیوشن آف پاکستان ہیں، جن کا ایک نام ہے اس دنیا میں. اور نہ صرف یہاں نیشنل بلکہ انٹرنیشنل بھی لوگ ان کو جانتے ہیں. اور پوری بیوروکریسی یا پوری منسٹری وہ بھی ان سے ایڈوائز لیتے ہیں. جب بھی کوئی کانفرنسز ہوتی ہے تو ملک بوستان کا نام سر اول ہوتا ہے، ان سے مشورہ لیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں، عوام کے ساتھ سنسیئر ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ کسی پہ کوئی بوجھ بنے، کسی بھی حکومت پہ کوئی بوجھ بنے. جو ملک کے ساتھ سنسیئر لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے. آج یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ملک بوستان صاحب کے ساتھ ہیں. ہم ان سے اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں ملک بوستان صاحب کہ آپ نے ٹائم نکالا، ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو ڈالر جو تھا اچانک اتنا شوٹ اپ کر گیا تھا کہ لوگ حیران تھے، پریشان تھے. یہ آخر کیا ماجرا ہے؟ یہ روزانہ روز ریٹس بڑھے جا رہے ہیں. گورنمنٹ تو اپنی جگہ پہ پریشان تھی، لیکن عام آدمی بڑے پریشان. دیکھو، سب اللہ کا کرم ہے. نبی پاک کا صدقہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اس میں کریک ڈاؤن شروع ہوا، اور یہ میں سمجھ سارا کریڈٹ آرمی چیف حافظ قاسم منیر صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے یہ بڑا بھاری پتھر اٹھایا جو کہ اٹھانے کو کوئی تیار نہیں تھا. اور ڈالر مسلسل بڑھ ہی رہا تھا، کمی کا نام ہی نہیں تھا. تو میں نے ان سے اپیل کی کہ اس وقت جو بلیک مارکیٹ کی مافیا ہے، انلیگل منی چینجر جو ہیں، ایکسچینج کمپنیاں اور حوالہ مارکیٹ والے، وہ اتنے دلیر ہو چکے ہیں پچھلی حکومت نے، کیونکہ ان کے خلاف کوئی بڑا کریک ڈاؤن نہیں کیا، نہ کوئی ایکشن لیا، کہ سارے اس کے سب کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے. تو یہ ابھی ایکسچینج کمپنیوں کے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے تھے ان کے کارندے، اور جو بھی کلائنٹ آتا تھا اس کو جو ہے گھیر کے لے جاتے تھے، اور ہم سے زیادہ آفر کر کے اس سے ڈالر یا ریال درہم جو بھی کرنسی تھی وہ خرید لیتے تھے. اچھا. تو ہمارے پاس 90% سپلائی کٹ ہو چکی تھی، اور یہی وجہ ڈالر کا ریٹ جو مارکیٹ میں تھا وہ 330 روپے تھا، اور انٹر بینک میں 308 روپے تھا. اچھا. میں نے ان سے اپیل کی، پھر میں نے اعلیٰ حکام سے، سلامتی اداروں سے بات کی، ان سے میٹنگ کی. میں نے کہا ابھی اگر آپ نے ایکشن نہیں لیا تو پاکستان کا پھر سر سے پانی اوپر ہو جائے اور پاکستان کا معیشت ڈوب جائے گی. اب بچانے کا وقت آ گیا، آپ ایکشن لیں ان کے خلاف، کیونکہ جتنی بھی پہلی سیاسی حکومتیں تھیں ان کے خود اپنے مفادات ہوتے تھے. جیسے آپ نے سنا ہوگا اسمگلنگ میں سب کا ہاتھ تھا، سب کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں تھا. تو وہ ان کے کئی چیزیں ہوتی ہیں، اور اسمگلنگ کے لیے ڈالر چاہیے ہوتا ہے، اور ڈالر آفیشیل وے سے وہ لے نہیں سکتے، وہ پھر بلیک مارکیٹ اور حوالہ مارکیٹ سے لیتے ہیں. اب ان کو جب زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایکسچینج کمپنی کو باہر آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہماری سپلائی لائن انہوں نے کاٹ دی ہے، اور سمجھے پاکستان کی سپلائی لائن انہوں نے کاٹی ہے. انہوں نے بڑی مہربانی کی، فوری طور پہ ایک ٹاسک فورس بنائی، انہوں نے بندوں کو ریڈ ہینڈ پکڑا، پھر کچھ انڈر گراؤنڈ ہو گیا، کچھ بھاگ گئے. تو اس کے بعد ڈالر کا ریٹ آپ نے دیکھنا، میں نے ٹی وی بھی بتایا کہ ڈالر کا ریل ویلیو جو ہے وہ تقریباً 240 اور 250 روپے ہے. اور عوام سے میں نے درخواست کی کہ آپ بھی ڈالر نہ خریدیں، ڈالر بیچیں. اس وقت جو بیچے گا وہ فائدے میں رہے گا. تو وہی ہوا جنہوں نے اس وقت 330 میں بیچا، آج اللہ کا شکر ہے دیکھو 280 سے بھی نیچے چلا گیا. بالکل. تو وہ اگر اس وقت جن لوگوں نے بیچا ہے اور وہ خریدا نہیں ہے تو فائدے میں رہے. اب جا کے نیچے جو ہے اگلا لیول اس کا 250 ہی ہے. ابھی یہاں پہ مارکیٹ کچھ 2-3 دن سے رکی ہوئی ہے، وہ بھی بینکوں کی وجہ سے. کمرشل بینک نہیں جاتے جس سے مزید نیچے جائے. تو اس کے لیے میں نے اعلیٰ اس کے حکام کیا وجوہات میں نے اعلیٰ حکام کو بتایا، اور ہماری میٹنگ بھی چل رہی ہے اس سلسلے میں. میں نے کہ یہ بینکوں کے کمرشل بینک جو ہے ہمیشہ ہی جب ہم مارکیٹ کو گراتے ہیں اور اس پر یہ یو ٹرن لے کے پھر بڑھا دیتے ہیں. تو آپ کی ابھی طاقت کا امتحان ہے، یہ طاقتور ہیں یا آپ لوگ طاقتور ہیں، کیونکہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے. تو میں نے بولا جی اس وقت جو ہے انہوں نے جتنے بھی ڈالر خریدے ہیں وہ انہوں نے اوپن پوزیشن انفکس ریٹ رکھے ہوئے ہیں اس کو، یعنی کہ ان کا ریٹ ہی نہیں کیا، اور ان کو اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ہم بڑھا کے واپس پہلے، کیونکہ ان کو یہ خون منہ لگا ہوا ہے، کئی دفعہ ایسے انہوں نے کیا ہے اور اس میں کامیاب بھی ہوئے. کسی نے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا. 3 وزیر خزانہ شوکت ترین، مفتاح اسماعیل، اسحاق ڈار دعائی دیتے دیتے چلے گئے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو خلاف ایکشن لیں گے، لیکن وہ خود سیٹ چھوڑ دی، وہ وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں. میں نے کہا ان کے خلاف ایکشن لیں. انہوں نے جتنی بھی پوزیشنیں ابھی رکھی ہوئی ہیں سواپ پہ یا انفکس رکھی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب انہوں نے سٹا کرنا ہے، مارکیٹ کو بڑھانا ہے. تو اب اس میں انکوائریاں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد جو ہے بہت سے نام اور بینکوں کے نام آنے والے ہیں. ان کے خلاف ایکشن ہوگا تو پھر پاکستانی روپیہ کبھی بڑھے گا نہیں، گرے گا نہیں، کبھی بڑھے گا نہیں، گرے گا. اور اچھا مبارک صاحب، لاسٹ ویک
1-2 दिन फिर मार्केट थोड़ी सी डॉलर की बढ़ गई थी, इसमें भी कोई किसी ने कहा हाँ, कि यही कोई वो कंस्पर्सी थी? 281 इन्होंने कर दिया, फिर मैंने बर वक्त इतला कर दी जितने हम्म भी गवर्नमेंट को, हम्म और गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया। तो हम्म यही वजह है कि अब रुका पड़ा है, अब यहाँ इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। क्या मैंने यही बात बताई है ना कि अब हम्म, बैंक वाले क्या कहते हैं और हुकूमत क्या कहती है, बिल्कुल क्या एक्शन प्लान लेती है। क्योंकि डॉलर का रेट नहीं गिरेगा तो फिर सारे ये दावे और सारी चीज़ें धरे के धरे रह डायरेक्ट रह जाएंगे। रहे थे। अब आज फिर हम जो अभी हुकूमत ने, इस निगरान हुकूमत ने और अवाम चीफ आर्मी स्टाफ ने जो बड़ा अच्छा इकदाम किया, जो हम्म नेशनल लेवल पे फैसिलिटेशन कौंसिल बनाई गई है, हम्म और उसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारियां मैशत की आर्मी के कंधों पर दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि आप चाहे आप इसको ऊपर उठाएं अपने कंधों से या हम्म नीचे गिराएं, ये आप हमने पूरे इख्तियारात आपको दे दिए। हम्म, इवन वजारतों की मॉनिटरिंग भी अब इनके पास आ गई है, अच्छा अच्छा। फैसिलिटेशन तो कौंसिल के आप पास। समझते हैं इससे कुछ इससे फर्क ये है पड़ेगा? कि ज़ाहिर है आप लोगों को जवाबदेह होना पड़ेगा। पहले सियासी पार्टियां थी। पार्टियां थी, उनके सियासी मफादात थे, उस वजह से वो चेक एंड बैलेंस सही नहीं था। तो हम्म अब चेक एंड बैलेंस होगा, जो कारकर्दगी नहीं दिखाएगा उसको मतलब आउट कर देंगे। हम्म, तो अब ये अगर हो जाता है, और ये खास तौर बैंकों वाला जो बहुत बड़ा मार्क है, ये अगर इस वक्त ये बैंकों को ज़ेर कर लेते हैं, फिर तो पाकिस्तानी रुपये इंशाल्लाह मजबूत होगा, डॉलर भी हम्म, गिरेगा। लेकिन अगर ये दोबारा इसी तरह कन्विंस कर लेते हैं और डॉलर को बढ़ाने की इजाज़त ले लेते हैं, तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है पाकिस्तानी रुपये का। फिर तो आप समझो सारे कोशिश हमारी रहगान जाएंगे, और फिर डॉलर के गिरने का ख्वाब छोड़ ही देंगे हम छोड़ लोग। देंगे। फिर तो अच्छा इनके एक इनके रहमो करम पे मैशत है पाकिस्तान के लिए, समझो मैशत का नासूर बन चुके हैं। बैंकों को जो है, जो चंद लोग हैं, हालांकि सारे नहीं हैं, सही उनके कहा। खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी हो हम्म गया इस वक्त। और उन्होंने जो है अपना एक कार्टेल बनाया हुआ है, इम्पोर्टरों एक्सपोर्टरों और बैंकों ने मिल के। हम्म, और उनकी कई फलाई कंपनियां, उनका वजूद ही नहीं है, उनके नाम से ये उनके सेलिंग नाम कर, से ले रहे हैं, बिल्कुल, यू हाँ, आर नाम वेरी से राइट। बाइंग सेलिंग करते हैं और फिर डिफरेंस पे करते हैं। ये गलत प्रैक्टिस है, ये स्पेकुलेशन इसको कहते हैं। हम्म एक फिजिकली चीज़ हो ही नहीं रही और उसको सिर्फ हवा में आप बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। हम्म। तो वो सट्टे सट्टे से जब तक ये तौबा तैब नहीं होंगे, उस वक्त तक पाकिस्तानी मैशत और रुपया कभी मजबूत नहीं होगा। अच्छा मलिक साहब, ये हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, बांग्लादेश भी आपके सामने है, इंडिया भी है, इवन अफगानिस्तान भी है, उनके डॉलर की जो वैल्यू है वहाँ 100 रुपये से कम है, 100 रुपये, 110 रुपये, यहाँ इस तरह चल रहे हैं। हाँ, हम इतना जंप कैसे ले गए? ये हमारी क्या? हमारे बैंक कर रहे हैं, क्योंकि उनके बैंक, बांग्लादेश की मिसाल उन्होंने एक दिन बढ़ाया था, उन्होंने तमाम ट्रेजरार को और जो बैंक प्रेसिडेंट से इन्वॉल्व थे उनको बिल्कुल फायर कर दिया था। अच्छा। और उनका 95 है, इंडिया का 82 है, हम्म अफगानिस्तान जिसमें इकोनॉमिक सेक्शन है उसका 75 है। हम्म 104 से कम होके हम्म 75 पे आ गया, तो अच्छा। हमसे तो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं। हम्म और हम लोग उधर के उधर ही गए, बढ़ के हमारे रुपया जब अफगान तालिबान आए थे तो हमारे 156 था, एक सौ और छप्पन बढ़ के 380 330 तक गया है। 30 तो 30। और अभी इस हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है, और मैं हम्म समझूं पूरी निगरान हुकूमत का जो निगरानी के लिए है, उसने सही निगरानी की है। हम्म अब अल्लाह करेगा आगे भी ये चलता रहे और डॉलर का रेट गिरता रहे, तो डॉलर जिस पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, खाने पीने की चीज़ें कम हो रही हैं, हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद हो चली है कि इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, कारोबार ज़िंदगी भी चल पड़ेंगे। इंशाल्लाह। और पाकिस्तान की मैशत जो है इस वक्त बड़ी चाइना जो है बड़ी सपोर्ट कर रहा है। हम्म अभी जो तीसरी सरबराही इजलास हुई है BRI का, BRI। जी जी, उसमें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं, और उन्होंने बड़े अच्छे ऐलान किए, बल्कि 20 MOU मैदों पे साइन भी हुए हैं, जिसमें माशाल्लाह। पाकिस्तान को वो पूरी हेल्प करने को तैयार है। और सी सी पैक पैक का पे भी थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हैं। सेकंड फेज शुरू हो चुका है, हम्म और उसमें तकरीबन 65 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 25 अरब डॉलर हुई है, अभी हम्म 45-40 अरब होनी है। तो इंशाल्लाह। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। पाकिस्तान ने 50 मनसूबे अपने मुकम्मल भी कर लिए। हम्म अब अगर रिलीजन में देखें, ईरान ने जो है सऊदीया की दोस्ती हो गई, जो हम्म बड़े अरसे से लॉन्ग टर्म से माजाराई चाह रहे थे एक बहुत दूसरे के ज्यादा। खिलाफ। तो ये एक बहुत बड़ा सबक है पाकिस्तान के लिए कि आने वाले वक्त में हम्म पाकिस्तान सरगर्मियों का महवर होगा, कि सी पैक और ग्वादर पोर्ट बड़ी अहमियत अख्तियार कर चुका है इस बेशक। वक्त। आप ये बताएं एज एक्सपर्ट ऑफ द एक्सचेंज मनी के हवाले से कि हुकूमत को, खुसूसन इस निगरान हुकूमत को, क्या स्टेप्स उठाना चाहिए आर्मी चीफ से मिलके, ताकि डॉलर के मुकाबले में रुपीस हमारा मुस्तकम हो जाए? देखो, इस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर मैडम शमशाद बेगम हमारे साथ, उनकी काफ़ी मीटिंगें रही हैं जब हम्म गवर्नर स्टेट बैंक थी। हम्म अभी पिछले भी महीने हमारी उनसे मीटिंग हुई थी। सही। और माशाल्लाह उनका बड़ा नॉलेज है, और बड़े मतलब वो पढ़े लिखे घराने से, उनके वाला साहब भी जो है आपको पता है बड़ा आला ओहदों पे रहे हैं बेशक। पाकिस्तान के। मैं उनको से हमेशा यही कहा हूँ, मजबूत रुपये ही मजबूत पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को मजबूत करने के, रुपये को मजबूत करने के लिए हमें स्मगलिंग जो है रुकी हुई है, इसको रुके ही रहना चाहिए। जिस इंशाल्लाह। तरह स्मगलिंग होती है, फिर डॉलर की डिमांड होती है। इस तरह अफगान ट्रांजिट है जो कि बड़ा मिस यूज़ होता है। इसमें मैंने हुकूमत को कहा भी है कि इसको ड्यूटियाँ कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब ड्यूटियाँ आप ज़्यादा करते हैं
स्मगलिंग बढ़ जाती है। हम्म, जब स्मगलिंग बढ़ती है तो ड्यूटी से आप महरूम हो जाते हैं, और मार्केट का और इंटर बैंक का रेट जब बढ़ता है तो हमारी वर्कर रेमिटेंस कम हो जाती है। सही कहा। अब जब से एक महीना देखें, हमने एक्सचेंज कंपनी ने पिछले एक महीने में तकरीबन $30 करोड़ दिए हैं, तो ये हमारे अच्छा, पास आवाम ने दिए हैं। हाँ ना। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। पहले 150-200 मिलियन होता था, और इस महीने हम उम्मीद है कि हम 440 करोड़ तक ले जाएंगे इसको। इंशाल्लाह और ताला। ये तभी मुमकिन है कि मार्केट का रेट और बैंक का रेट नैरो हो। और बैंकों को जो अभी दोबारा बढ़ाने की कोशिश करें, इसमें समझे फाइनेंस मिनिस्ट्री का बड़ा रोल है, वो भी बड़ा अहम रोल अदा करेगी। हम्म, उसको भी एक्शन लेना चाहिए। जो बैंक सट्टेबाजी में इन्वॉल्व है या फलाई बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ जब एक्शन हो जाता है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की देखो इस वक्त पूरी दारोमदार निगरान हुकूमत पे है, क्योंकि ये मैं समझता हूँ PDM का ये बड़ा अहम रोल है कि वो इनको पूरे इख्तियारात दे के गए, अमेंडमेंट कर सकते हैं, वरना पहले निगरान हुकूमतें अमेंडमेंट करने का इख्तियार नहीं होता था। नहीं होता था। अब उन्होंने बड़े मायदे किए हैं, चाइना से जैसे 20 में बताया मायदे हुए हैं, उसमें बिल्कुल बिल्कुल। ज़राअत का है, IT का है, मादनियात का है, फ्रीलांसर का है, बहुत फ्रीलांसर। सी उन्होंने मायदे किए हैं जो पाकिस्तान की मैशत को मजबूत करेंगे। और पाकिस्तान की जो है इस वक्त ईरान हम्म, और सऊदीया और जितने मिडिल ईस्ट है और सेंट्रल एशिया है, और ये सारे का सारा जितने भी इस वक्त जो CPEC और IBR जाना है, ये चाइना से शुरू होना है और यूरोप तक ये रोड जाना है। और बेशक। 140 कंट्री जो है इसमें इन्वॉल्व है। हम्म, तो जो पिछले 140 कंट्री ने शिरकत भी की है चाइना में। तो बेशक। पाकिस्तान की जो है बहुत बड़ा अहम रोल होगा, पाकिस्तान की मैशी सरगर्मियों का महवर बनने वाला है। अब हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको मौके को गंवाना भी नहीं चाहिए, इससे इंशाल्लाह फ़ायदा उठाना चाहिए। चाइना भी चाहता है कि पाकिस्तान तरक्की करे, सऊदीया भी चाहता है, वो इन्वेस्टमेंट करने को भी तैयार है। फैसिलिटेशन काउंसिल इसलिए बनाई गई कि $12 अरब का प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के आने वाले दिन बड़े अच्छे हैं। अल्लाह का करे पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। आमीन। पूरी इस्लामी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे हैं। पाकिस्तान एटम और मुल्क है, पाकिस्तान आज भी न्यूक्लियर ताकत है, लेकिन माशी ताकत बनेगा तो लोगों को फ़ख्र होगा, और हमें भी एक फ़ख्र होगा अपने मुल्क पे। थैंक यू वेरी जी, मच मलिक शुक्रिया। साहब। नाजरीन, आपने जैसे मलिक साहब की बातें सुनी कि अगर रुपया मजबूत है तो पाकिस्तान मजबूत है। ये एक अच्छा नारा है। अगर हम अपनी करेंसी का कुछ ख्याल रखेंगे और रुपये के मुकाबले में अगर डॉलर हमारा आगे नहीं बढ़ेगा, बकौल मलिक बोस्तान साहब के कि हमारी जो आजकल जो सी एंड वाच की जो पोजीशन है वो आर्मी भी कर रही है और निगरान हुकूमत भी कर रही है। यानी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री मिल के सब कोई जो है मुल्क की इकानमी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला जैसे मलिक बोस्तान साहब ने कहा, इनकी बातों पे अगर अमल किया जाए और इनकी बातों को अगर सीरियस लिया जाए तो कोई वजह नहीं कि हमारा मुल्क मुआशी तौर पे तरक्की न कर सके। इसी के साथ ही अपने मेज़बान असदुल्ला भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।